I'm also a qualified personal finance professional. सो डेफिनेटली फाइनेंस में होते हुए इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. एंड अल्टीमेटली आपका पर्सनल फाइनेंस ही आपको आगे जाके काम आने वाला है. आपको आपके नॉमिनी को बेसिकली 10 लाख या 15 लाख रुपया मिल जाएगा यहाँ पे. माई बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल रेफरेंस आर द गेम दैट हैज टू बी प्लेड. इमोशन साथ में लाए तो इट बिकम्स डिबेटेबल. Namaste and welcome to our podcast From Idea to Impact, where we directly learn from founders on their journey of their startup, where they just had an idea to work with and already started making impact in their own industry. I am your host CA Vishal Mehta with my own startup Prophetic Business Solutions Private Limited, which is into virtual CFO service and international tax restructuring for such startups and MSMEs. Today I am glad and honored to have Mr. Rishit Shah, who is co-founder of his company MegaGain, which is into mutual fund advisory since last 10 years. Mr. Rishit is a qualified personal finance advisor and a BCom graduate from Mithibai College and qualified MBA finance from MET. He is also a regular speaker in Money Manager's show in CNBC Bazaar and also writes articles of finance related to personal finance in newspaper Dainik Bhaskar. Welcome to the show, Mr. Rishit. Glad to have you here. Thank you so much, Vishal, for inviting me on your podcast. Thanks a lot. So, Rishit, just take us back to your childhood memories or when you thought to be a mutual fund advisor or to dive into this personal finance field. Who is your inspiration and from where this journey really started? Sure. So I'm from Gujarat. Okay, I came in Bombay in 2007. When I came here, since I was alone here, I came to know, I met different people. Okay, at that point of time, I came to know that every person has a different individuality. Every person thinks differently. Every person talks differently. Okay, so with that, I was also able to make connections, my network, which helped me to gain internship into finance field, again into sales side. Okay. And after that, I did my MBA, obviously, into banking, finance and insurance. After that, I landed up with a job in a real estate company. I worked for around 1.5 years. After that, I switched over to Pioneer Insurance Broker, which was into corporate insurance sales. Now, this was a company where I got a lot of experience, a lot of ideas how to go about it. Okay, what we were doing there was, we were meeting the clients, the corporates, and we were trying to explain them that how they can cover their existing risk, what are the unforeseen risks which are there. So we used to give them ideas, we used to give them policies, and that's how the process went ahead. Touchwood, I gained a lot of experiences over there, which is still helping me in my own practice right now. At the same time, my dad is also a financial advisor, qualified financial advisor. So I was seeing him, that how he was reacting to clients, how he was explaining to the clients about the investments, about the savings, about the goals, and I was really inclined in understanding all that things. At the same time, since I was alone over here, तो थोड़ा होता है स्टार्टिंग में यार कि खुद करना है सब कुछ. तो I started doing my investments, पर थोड़े टाइम में पता चल गया यार it is not my cup of tea, or I can say it is not as easy as you can think about. Okay, so that's where my interest started coming in. I did few certification courses. I'm also a qualified personal finance professional, which is again a course that I did. And that's where I feel that मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसको पता नहीं है या जिसको हेल्प चाहिए. And that's how my journey started. Yeah. So, as you correctly said, personal finance is not everyone's cup of tea. So definitely finance में होते हुए it's not everyone's cup of tea. तो नॉन फाइनेंस का तो बात ही छोड़ दो. Right. So and certain people are intimidated by finance. Right. So ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस हो? Sure. So whether it's finance, whether it's personal finance, अगर आपका smooth है, everything is good, you are one of the peaceful person on this earth. But even a slightest crack or even a slightest deviation to your personal finance or finance can lead you big problems in the future. Correct. It is as good as we say that even slightest of crack in a ship can sink the biggest of the ship. Correct. So proper finance is very, very important. Correct. At the same time, I'll say we Indians, जो हम लोग की financial habits है, is as bad as our diet.
ओके एंड आई वोंट ब्लेम एनीवन ओवर हियर बिकॉज हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ाया गया था. ओके, सो दैट्स वेयर आई फील कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम जब मैं लोगों को पूछता हूँ, सो ओके, सो लोगों को जब मैं पूछता हूँ यहाँ पे कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, कहाँ पे करते हो, लोग बोलते हैं एफडीज में करता हूँ, पीपीएफ में करता हूँ. बट व्हेन आई आस्क देम कि क्यों एफडी में कर रहे हो, क्यों पीपीएफ में कर रहे हो, उसका आंसर नहीं होता है. या क्यों रिटर्न बैक पॉलिसीज़ लेते हैं. आइदर कोई बोलता है कि मुझे बैंक ने दे दिया, मेरे आरएम ने दे दिया, कोई मेरा एजेंट आ गया, मेरे फ्रेंड ने दे दिया, बट इट्स नो प्रॉपर आंसर टू इट. एंड आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इज नॉट beating retail inflation as of now. Okay. So since I'm a co-founder, I do meet clients day in and day out. Okay, so say what I've been seeing, okay, here is जब मैं client को मिलता हूँ then everybody knows that how to make the company's balance sheet strong, whether it's a business person or an employee. Okay, but स्टिल जब पर्सनल फाइनेंस पे आता है तो लोगों को पता ही नहीं किस तरह से उसको बिल्टअप करना है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है. हाँ, देयर आर पीपल जिसको पता है, बट मेजोरिटी ऑफ देम स्टिल डजंट नो अबाउट इट. एंड अल्टीमेटली आपका पर्सनल फाइनेंस ही आपको आगे जाके काम आने वाला है. कहीं भी प्रॉब्लम है तो पर्सनल फाइनेंस ही काम आएगा आपको यहाँ पे. ओके, अगेन इफ आई गिव यू वन स्टैट्स, इट्स माई स्टैट्स. ओके, सो इफ आई से आई एम मीटिंग 10 people, after that 10 people, I'll say around 6 to 7 people that I'm meeting are still investing in FDs and PPS and return back policies, which I feel is a huge which can create a huge problem in the future, since there is no proper clarity to it. Okay, now कोई लोग बोलते हैं कि मैं इंश्योरेंस पॉलिसी करता हूँ, बहुत अच्छा पॉलिसी मुझे मेरे फ्रेंड ने दे दिया. Now I'll say अगर आपका जो रिटर्न बैक पॉलिसीज है is as good as a robbery on you in day that you with the consent. Okay, I'll tell you the reason for that. What this kind of policy says that आप 1 लाख रुपया हर साल फॉर एग्जाम्पल डालो, 15 ईयर्स तक आप डालते जाओ 1 लाख करके, then you get is around 1.5 lakh rupees, एक रफ बोल रहा हूँ, 1.5 lakhs rupees every year मिलता है for another 15-20 years, and then you get around 25-30 lakh rupees that you get it. Now in case if anything happens to you, then आपके नॉमिनी को बेसिकली 10 लाख या 15 लाख रुपया मिल जाएगा यहाँ पे. Now there are two things that you are getting. One is investment and one is insurance. Indians को तो हमेशा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, जितना ज़्यादा उतना अच्छा, right? But tell me one thing, if anything happens to a person, Vishal, do you feel 10-15 लाख में फैमिली का कुछ होने वाला है? आंसर राइट. तो उसका मुझे कुछ भी उसका तो बेनिफिट नहीं हुआ. अगर मैं आपको बोलता हूँ आज 1 लाख रुपये डालो, 15 साल का मैं आपको 1.5 लाख रुपीज़ दूंगा, उसकी वैल्यू होगी, पैसा मिलेगा बट वैल्यू शायद तक नहीं होगी. सो व्हाट इज हैपनिंग, का नहीं इंश्योरेंस के साइड हो नहीं इन्वेस्टमेंट के साइड हो. सो आई एम अ गुजराती, तो हम लोग बोलते हैं खिचड़ी. ओके, सो इट इज़ लाइक खिचड़ी इज़ समथिंग जो खाने में तो आपको बहुत प्रोटीन मिलेगा, बट पर्सनल फाइनेंस में जब खिचड़ी का तो कुछ भी नहीं मिलता है. ओके, सो मेक श्योर दैट योर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस आर डिफरेंट ऑल टुगेदर. इट शुड नॉट नेवर बी सेम. ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पे एक सर्वे आया था जहाँ पे इट्स सेड दैट 80% ऑफ द इंडियंस आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिटायर. द रीज़न बिहाइंड कि आपके रिटायरमेंट से 60 ईयर्स है, तो उसके 5-10 साल पहले प्रॉबेबली सबका बेटे या बेटी का हायर एजुकेशन आएगा, ग्रेजुएशन आएगा, शादी आएगी, प्लस आपका रिटायरमेंट है, उसमें भी आपने अगर ज़्यादा जी लिया तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा. आजकल नया कंसेप्ट है अर्ली रिटायरमेंट, वो भी एक प्रॉब्लम है. सो इफ़ थिंग्स हैव नॉट बीन प्लान प्रॉपरली, things can go haywire, and that's the reason the survey says that 80% of Indians are still not ready to retire, and that's where I feel that there is a huge amount of awareness that has to be created. Not for money, I'm doing it just for passion that I'm into this field. Correct. No, I totally agree. जैसे we also come across a lot of finance beliefs in startups, जहाँ पे corporate finance में they have good idea to work with, they are excellent in operations, but cash flow mismanage हो जाता है. Again पैसों की बात, because that's a separate expertise which one needs to have. So that's why if they don't have, we provide our virtual CFO service. Same with you. People think that they know finance, या इधर उधर की बातें सुन लेती हैं, बट वो या उन्हें कम रिटर्न देता है, किसी टाइम लॉस में भी लेके जा सकता है, या उनके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करता है. सो टेल मी Rishit, you in your this many years of experience, what hurdles you have faced as your startup Sure. with this specific field of personal finance? Sure. So whether it's me or anybody who does a startup, एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते कि मैं स्टार्टअप कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे कि नहीं, मुझे क्लाइंट्स एंटरटेन करेंगे कि नहीं, मुझे मीटिंग्स मिलेगी कि नहीं, मैं धंधा कर पाऊँगा कि नहीं, मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं. सो ऑल दैट क्वेश्चंस वर स्टिल देयर विथ मी. आई एम नो डिफरेंट. ओके, बट सिंस आई एम इनटू सेल्स बैकग्राउंड, तो मेरे पास थोड़े कनेक्ट्स थे.
ओके, सो व्हेन आई लेफ्ट द कंपनी, मुझे एक चीज़ सेल्स में इतने सालों से, तो एक सेल्स का एक रूल है कि आप लोगों को मिलते जाओ, लेफ्ट राइट सेंटर मिलते जाओ. ओके, सो व्हेन आई लेफ्ट द कंपनी, व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, मैं अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कलीग्स, मेरे क्लाइंट, सबको मैं मिलते गया. लकीली पीपल न्यू मी हाउ आई वर्कड अर्लियर, तो उनको थोड़ा बहुत भरोसा था, तो उनका जो पैसा था, आई वॉज मैनेजिंग थैंक्स टू देम, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया इनिशियल डेज पे. सो इनिशियल मुझे स्ट्रगल उतना नहीं आया था कंपेयर टू अदर पीपल यहाँ पे. बट वॉट आई ऑल्सो डिड हियर वॉज कि मैंने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए थे इन कॉर्पोरेट्स एंड मेरे खुद के क्लाइंट्स के लिए. नाउ व्हेन आई डू इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, तो उससे हुआ क्या कि मुझे बहुत बड़ा डेटाबेस मिल गया. ओके, अगेन इसमें बेनिफिट ये होता है कि अगर से आपका कोई क्लाइंट एक क्लिक होता है या एक एम्प्लॉय क्लिक होता है, तो प्रॉबिलिटी इज दैट आपके 3-4 और एम्प्लॉय क्लिक होने के चांसेस है जहाँ पे आपको रेफरल मिलेगा. ओके, प्लस तो वहाँ से मुझे रेफरल मिला, प्लस मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारे रेफरल्स दिए. I know one thing, that if I want to prosper, if I want to take my business to next level, referrals are the game that has to be played. Referrals के बिना आप भागो पर कितना भागोगे, right? But मुझे रेफरल्स कैसे मिला, मुझे सक्सेस कैसे मिला, इज़ आई फॉलो अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी जो मेरी टीम को भी बोला हुआ है, इज़ क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच. क्लाइंट को जो चाहिए तुरंत मिलना चाहिए. सो वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट विद आवर सर्विसेज. अगर कोई क्लाइंट ने कुछ पूछा है, हम लोग तुरंत उसको रिवर्ट बैक करते हैं. इवन इफ आई एम इन मीटिंग, आई पिकअप देयर फ़ोन के बोलता हूँ 5 मिनट में कॉल करता हूँ, जो भी टाइम में कॉल करना है, कॉल बैक. आई यूज टू कॉल बैक देम. ओके, प्लस रिटर्न एक्सपेक्टेशन, कि आप जब स्टार्ट के हम लोग एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर रखते हैं विथ हिम एंड विथ अस कि क्या एक्सपेक्टेशन लेके चलना है. सो दिस हैज़ हेल्प मी टू गेन माई क्रेडिबिलिटी, जिससे मुझे काफ़ी सारे रेफरेंसेज आए. जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, देयर वाज अ क्लाइंट अराउंड 3 years बैक जो हम लोग को मिला था. ही वॉज अर्निंग अराउंड 2 crores a year. Okay, he is an HNI client still, but he's not my client. Okay, so when he met us, हम लोग ने ऑब्वियसली 3-4-5 मीटिंग किया, सब कुछ हो गया. ही वॉज ऑलमोस्ट कमिंग ऑन बोर्ड. तब लास्ट मिनट पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन पे अटका था कि भाई उसको चाहिए था 20-25%, विच वी फील्ड इज एन अनरियलिस्टिक नंबर. सो वी क्लियरली सेड कि ये दिस समथिंग विच वी डोंट अग्री टू इट एंड वी पार्टेड वेज ऑन अ गुड टर्म. नाउ यू वोंट बिलीव, ये जो क्लाइंट है अभी भी मेरा क्लाइंट एज आई सेड, बट इन्होंने मुझे 4 रेफरेंस दे दिए जो मेरे क्लाइंट बने हुए हैं. सो वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वी आर वेरी क्लियर विद एक्सपेक्टेशन कि क्या करना है. सो बाद में कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. So that is something which I feel is very very important. That is something that we follow it rigorously. करेक्ट, आपने बिल्कुल सही बात की. जैसे एक्सपेक्टेशंस की, भले वो एक क्लाइंट जाने भी दिया, लेकिन यू स्टेड टू योर रियल कमिटमेंट सो दैट व्हाट यू कमिट. ऑफ कोर्स ये फाइनेंस की बात है तो उसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट यू गिव बेस्ड ऑन योर एक्सपेंस रियलिस्टिक कमिटमेंट्स. तो क्या आपका पहला स्टेप गोल मैपिंग होता होगा क्लाइंट के साथ कि भाई लेट्स have your goals so that we can plan your goals, plan your investments accordingly. So I'll say in this way कि personal finance is 80-85%. Personal finance is all about emotions. 15-20% is analytical. Okay. Now, if you have clear goal, if you have clear map with you, तो आपको इमोशंस हावी नहीं होंगे. अगर क्लियर नहीं होगा, इमोशंस आपके ऊपर क्रिपिंग करना चालू हो जाएगा. ओके, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, से मैं आज को बोलता हूँ कि विशाल एक काम करो, रिलायंस का शेयर ले लो जो 500 रुपये का है. ओके, लॉन्ग टर्म में बढ़ जाएगा, आप ले तो लोगे ना. जैसे ये 500 का 300 होगा, 400 होगा, 200 होगा, आपको डर लगने लगेगा. प्रॉब्लम यू माइट सेल इट ऑफ. भाई लॉन्ग टर्म कब, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई क्लैरिटी तो है ही नहीं. बट इफ़ आई टेल यू इन दिस वे कि विशाल आप 500 रुपये का रिलायंस शेयर ले लो, कीप इट फॉर 10 years, सो दैट उसका शायद शेयर का प्राइस 2000 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, एंड वो 2000 से आप अपना घर जो आपका ड्रीम होम है वो आप ले लेना. ओके, सो यहाँ पे क्लैरिटी आ गई. नाउ इवन दैट 500 स्टॉक गोज टू सेट 300-200, प्रॉबेबली यू वोंट सेल दैट स्टॉक बिकॉज आपको क्लैरिटी कि मुझे 10 साल के बाद चाहिए, मुझे इसके साथ घर लेना, मैं अभी क्यों बेचूँ. ओके, सो सेम पर्सनल फाइनेंस में जितना क्लैरिटी होगा, जितना आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करोगे, प्रॉबेबली दैट इज़ द टाइम जहाँ पे आपका इमोशंस अंदर नहीं आएगा. अदरवाइज इमोशंस जैसे आ गया, योर पर्सनल फाइनेंस आर गोइंग टू गो हेवायर. I can proudly say about this, about my company, about me, is मेरा majority of the time goes on managing clients' emotion. Okay, because I know one thing, if I'm able to manage his emotions, return automatic आ जाएगा, उसके goals भी automatic clear होने ही वाले fulfill. So that is what my focus is, because मेरे हाथ में client के emotions को manage करना है, return मेरे हाथ में actually नहीं है. So rather than focusing on return, let me focus on the client which is there. And trust me, with this I'll say with this process,
आज की तारीख पे जब मार्केट गिरता है तो क्लाइंट हम लोग को सामने से फ़ोन करता है कि ऋषित तो इसके अंदर पैसा डाल, विच आई फील इज एन विक्ट्री इन itself for me, a small victory in itself. Right. So because you have able to train at least educate your clients ki Right. If your goals are long term, you need not fear temporary fall in market. Right. I think I am also one of those clients. So even if I am a chartered accountant, let me tell you that if we are busy in our own field, we also have hire personal advisors like Rishit to manage our finance. So you can imagine कि अगर चार्टर्ड खुद को भी बाहर देना पड़ता है तो फाइनेंस को प्लीज़ कैजुअली मत ले. सो टेल मी ऋषित, आपने ओवर योर जर्नी ऑफ 10 और मोर ईयर्स कई टाइप के क्लाइंट्स देखे होंगे और फ्यू जनरेशनल क्लाइंट्स भी देखे होंगे. सो जिनको आजकल बोलते जेन जी या मिलेनियम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो भी क्या गोल मैप में बिलीव करते, क्योंकि बाकी सब में तो उनको बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है. तो उनको अगर आपको समझाना पड़े कि भाई भैया प्लीज़ गोल मैप रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, तो क्या वो सुनते हैं या फिर उनके फादर मदर को बुलाना पड़ता है? That's a good question, very good question. So I'll see so there are two concepts which are important for whether it's Gen Z या कोई भी generation हो. Okay, one is power of compounding. Compounding is nothing but interest on interest. It is called as the eighth wonder of the world. I'll tell you reason for that. Say विशाल, मैं आपको बोलता हूँ कि आप 1 रुपया लो, okay, and then you compound it every day, डबल करते जाओ for 31st day, 31 day, 1 महीने के लिए. You know, आपका जो पैसा है वो 107.37 crores हो जाएगा. Just to give you an example, फर्स्ट डे आपके पास 1 रुपया था, सेकेंड डे 2 रुपया, थर्ड डे 4 rupees, 8 rupees, 16, 32, okay, 64. On 15th day, it will be approximately around 16,000 rupees. On 25th day, it will be around 1 crore 67 crores के आजू बाजू कुछ होगा. Okay. On 29th day, it will be around 26 crores. On 30th day, it will be 53 crores के आजू बाजू होगा. And 31st day, it will be double, which will be 107 crores. So कंपाउंडिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो पर्सनल फाइनेंस आधी वॉर आपने जीत ली. कंपाउंडिंग में एक चीज़ है कि इनिशियली आपको बहुत दिखेगा नहीं, पर एक बार कंपाउंडिंग देखना चालू होगा बाद में यू विल बी शॉक टू नो कि मेरा इतना पैसा कैसे बढ़ गया. ओके, सो दैट्स वन कंसेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सेकेंड कंसेप्ट आई विल से इज एवरीबडी हैज़ टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज सिप प्लस हिप प्लस टिप इज इक्वल टू POM. SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस प्लस टर्म इंश्योरेंस इज इक्वल टू पीस ऑफ माइंड. ये या सिप प्लस टिप प्लस हिप इज इक्वल टू POM. सिप प्लस टिप प्लस हिप, ये ज़रूर याद रखिएगा, बट उसका फुल फॉर्म. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सब कोई भी जनरेशन जो अभी एक्सेप्ट द रिटायर्ड पार्ट उसमें नहीं आता, बट अदरवाइज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ एज फार एज तीन जनरेशन की बात करके, जेन जी, मिलेनियल्स जो आज की तारीख सब लोग वर्ड्स बोलते हैं, बूमर्स जो वर्ड्स बोलते हैं, राइट. सो अपने अपनी पिक्युलरिटीज़, अपने अपने थॉट प्रोसेस है. नाउ आई विल से जेन जी एंड मिलेनियल्स काइंड ऑफ सेम थॉट प्रोसेस में. ओनली मिलेनियल ये होता है कि शायद वो शादी के रेंज में आ गया या शादी कर दिया होगा. ओके, एंड जेन जी शायद तक प्रॉब्लली जॉब करना जस्ट स्टार्ट किया होगा. नाउ विद बोथ द जनरेशन जो देखा गया ये कि जैसे ही वो कमाना स्टार्ट करते हैं वो लोग एक्सपेंस कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं. नाउ आई एम नॉट सेइंग खर्चा मत करो, आप कमाई इसलिए करो कि खर्चा करो, पर आपको खर्चा एक लिमिट में करना है. अगर आप लिमिट के बाहर खर्चा कर रहे हो, इट्स अ बिग प्रॉब्लम. ओके, अनदर थिंग विच आई विल से इज के जो देखा गया है इज एज यू सेड दैट जेन सी मिलेनियल्स को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत ही पैसा कमाना है. आई विल से देयर आर नो शॉर्टकट्स. वेदर इन पर्सनल फाइनेंस आपके पर्सनल लाइफ में देयर आर नो शॉर्टकट्स. आपको एक प्रोसेस से फॉलो करना है, प्रोसेस करना ही पड़ेगा. ओके, थर्ड थिंग विच आई एम सीइंग रेगुलरली इज के जैसे आप कमाना स्टार्ट करते हो तो आई तो आप EMI ले लेते हो, घर का EMI ले लेते हो, या बड़ा EMI ले लेते हो ना. आई एम नॉट सेइंग आप घर मत लो, EMI मत लो. EMI लो, घर लो, दैट्स ओके, बट योर EMI शुड नॉट बी मोर देन 25 to 30% ऑफ योर मंथली इनकम. नाउ आई हैव बीन सीइंग पीपल जिसका EMI इज व्हाट 50% ऑफ द मंथली इनकम, 60% ऑफ द मंथली इनकम. अभी इसमें होता क्या है कि जो आपका जो 50% में आप बाद में इन्वेस्ट क्या करोगे, खाओगे क्या, कमाओगे क्या, और मज़े क्या करोगे. मज़े भी तो करना है, राइट. करेक्ट. सिर्फ इन्वेस्ट भी नहीं करना है. And that is a big problem that I've been seeing with this kind of generation. More than that, ये तो चलो एक तो एक साइड पे हो गया. More than that, I feel 25 years to 25th year to say 40th year तक या 45 years तक are the years जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो.
वेयर बाय यू कैन जॉब स्विच योर जॉब्स, या आप बिजनेस में रिस्क ले सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो. नाउ एज सून एज आई टेक एन EMI ऑन माई हेड, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ कम हो जाती है. जैसे ही मुझे जॉब स्विच करना, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं दूसरी जॉब किया तो मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा सैलरी की नहीं, अगर मुझे निकाल लिया तो क्या. तो रिस्क की एबिलिटीज़ कम हो जाती है. अभी ट्रस्ट मी, आप अगर EMI है आपका, आपको लगता है घर आपका है, आई एम मेकिंग डायलॉग, आपको 1 या 2 महीना आप उसका बाउंस करो, बैंक वाला आपको याद दिला देगा कि घर किसका है. राइट. सो अगेन द पॉइंट इज, डू, आई एम नॉट सेइंग यू डोंट डू इट, बट डू इट. सब अगर आपको लेवल्स में आ रहा है देन डू इट, अदरवाइज इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके आगे जाके आपको गोल्स भी मैप करने, आपको अचीव करना है. मीन टू से रिटायरमेंट या शादी या बच्चे की शादी, बच्चे का एजुकेशन, वो सब भी इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज अ प्रॉब्लम. एंड ओके, वन मोर थिंग आई लाइक टू से हियर इज के इन्वेस्टमेंट, इन लोग के पास जो मिलेनियल्स और जेंजी, उनके पास मैक्सिमम जो सबसे बड़ी चीज़ है टाइम. तो जब आप इन्वेस्टमेंट करो तो मेक श्योर कि एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो होता ही है, मीडियम टर्म मेक श्योर 1/3 ऑफ द पोर्शन शुड बी लॉन्ग टर्म, सो दैट उसको टाइम मिले कंपाउंडिंग का, जो आगे जाके काम आ सकता है. वही अगर बूमर्स की बात करें, विच आई विल से अराउंड 40-45 ईयर्स के आजू बाजू लोग हैं, अभी इन लोग अलग टाइप के थॉट प्रोसेस है. दे आर ऑब्वियसली मोर रिलैक्स पीपल कंपेरेटिवली, ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा कमाते हैं यहाँ पे बिकॉज इतने सालों से काम करते आए हुए हैं. बट द प्रॉब्लम विद दैम इज़ कि उन लोग का जो रिटायरमेंट है इज़ नियर बाई. 60 पे रिटायर, अगर अर्ली रिटायरमेंट जो नया कंसेप्ट है दैट इज़ नियर बाई. अभी अंडरस्टैंड वन थिंग, 60 पे रिटायरमेंट होना है, 5-10 ईयर्स पहले उनकी बेटी की शादी होगी, हायर एजुकेशन होगा, एजुकेशन आने वाला है. उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपको रिटायरमेंट पे भी आपको आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बढ़ ही रहे. अब लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कम नहीं कर पाओगे. रिटायरमेंट के बाद आजकल 75-80 ईयर्स तक भी शायद तक लोग जी रहे हैं, और शायद और जिएंगे बिकॉज ऑफ मेडिकल एनहांसमेंट. गोली लेके जिएंगे पर जिएंगे सही. ओके, सो यू डिड ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉर्पस. आई कैन टेल यू वन थिंग, गॉन आर द डेज जहाँ पे हम लोग 1-2-3 करोड़ रिटायरमेंट कॉर्पस होके जी लिया तो हो गया रिटायरमेंट. ऐसा द गॉन आर द डेज. द रीज़न भी है, हम लोग के पापा या हम लोग के दादा रिटायर हो पा रहे थे इन 1 or 2-3 crores बिकॉज वो टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स 12-13-14% पे थे, और इन्फ्लेशन 6-7-8% के आजू बाजू था. आज ऑपोजिट हो गया है, इंटरेस्ट रेट 6-7-8% और रिटायरमेंट और इन्फ्लेशन स्टिल एट 7-8-9% पे रिटेल इन्फ्लेशन चला गया है. सो इफ इट इज़ नॉट बीन प्लान प्रॉपरली तो बहुत बड़ा फिगर आने वाला है. दैट्स रीज़न 80% ऑफ द पीपल आर स्टिल गेटिंग वरीड टू गेट रिटायर्ड. अभी इसमें एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि मुझे क्लाइंट बोलता है कि यार ठीक है मेरा बेटा है ना यार, बेटा एजुकेशन करना, वो अपना यार EMI ले लेगा. ट्रस्ट मी, बीइंग अ पेरेंट, आपको ये चाहिए कि आपका बेटा Day 1 से EMI की पोजीशन पे आ जाए. यू वोंट लाइक इट, राइट? नाउ अगेन आई एम नॉट सेइंग कि सबके पास पैसा होगा, आपके पास पैसा नहीं तो दैट्स ओके. यू नो, आई विल टेल यू वन फिगर, जहाँ पे आप अगर 10,000 की भी एक SIP करते हो, सी इफ आई डू एन SIP ऑफ 10,000 रुपीज़ फॉर 10 ईयर्स, मैंने ऑलरेडी 12 लाख रुपया डाल दिया होगा, मैं 10 ईयर्स में 22 lakhs हो जाएगा एट 12% CAGR. वही मैंने अगर से 20 साल रखा, इट विल बी अराउंड 90 लाख रुपीज़ हो जाएगा, मोटा मोटी फिगर बोल रहा हूँ. एंड इफ आई कीप इट फॉर 30 ईयर्स इट विल बी अराउंड 3 crores. सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बड़ा करो, बट स्टार्ट तो करो. नहीं किया एटलीस्ट स्टार्ट तो कर दो. It's important to do a financial planning, otherwise things are going to go haywire. As in that's something which I'm really worried about. करेक्ट. आपने जो एक इम्पोर्टेंट टच किया, आजकल बहुत वो चल रहा है कि रेंट वर्सेस बाय. तो EMI का जो जल्दी नहीं लेने का तो डिसएडवांटेज बताया कि बहुत जल्दी प्रेशर आता है. बट अगर सिर्फ स्पेसिफिक ये एनालाइज करना है कि रेंट या ओन करना हो फ्लैट, यहाँ पे 2 चीज़ बोलूँगा, एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए और एक ओन पे लिए. पहले मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बात करता हूँ. से इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू एन इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट पर से, तो अंडरस्टैंड वन थिंग, रियल एस्टेट हिस्टोरिकली 6-7-8% के आजू बाजू रिटर्न दिया. अनलेस एंड आपको कोई अच्छा पॉकेट मिल गया, जो नसीब होगा तो मिलेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. सेकेंड थिंग मैं देखा है कि आप इन्वेस्टमेंट EMI पे लेते हैं, मतलब लोन लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं. नाउ शायद मेरा घर 1 करोड़ का, मैं लोन लेता हूँ, मेरा घर 1 करोड़ का नहीं है, मेरा घर 2 करोड़ का हो जाएगा मोटा मोटी, राइट? प्लस से इफ आई टेल यू कि मुझे यार घर मेरे पास है, मुझे, एंड फ्रेंकली रियल एस्टेट इज़ अ टॉपिक जो हम लोग ने सालों से देखते आए हो, तो दादा परदादा सब लोगों ने डाले, तो ये एक इमोशनल कॉल है. प्लस रियल एस्टेट ऐसा है कि एक और जो अच्छी चीज़ लगती है कि मेरे सामने प्रॉपर्टी है ना, काम नहीं करेगी चलेगा, प्रॉपर्टी मेंटल अच्छा लगता है. बट अगेन some things emotion has to be kept aside, right? Now if I tell you that, you know, आज मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए,
तो ऐसा तो होगा नहीं है मैं किचन बेच के प्रॉपर्टी ये 10 लाख रुपया करूँ, मुझे पूरा का पूरा ये बेचना पड़ेगा, लिक्विड करना पड़ेगा. सेकंड थिंग आई कैन से कि मुझे आज से 1 करोड़ का घर है, मुझे 1 करोड़ में बेचना है. प्रॉबिलिटीज़ कि मैं कभी 1 करोड़ में बेच ही नहीं पाऊंगा ऑन द स्पॉट. प्रॉब्लली मुझे 90 लाख 80 लाख में बेचना पड़ेगा, या मुझे हायर साइड पे हायर और नंबर ऑफ ईयर्स थोड़ा रुकना पड़ेगा टू सेल दैट प्रॉपर्टी. सो इट्स अ वेरी वेरी हाईली इलिक्विड प्रॉपर्टी एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न. As far as rent versus buying is concerned, I'll tell you my example. As in everybody knows, and I stay in Kandivali in Mumbai. Okay, I'm staying on rent. I'm paying a rent of 50,000 for a 2 BHK. Probably ये घर का वैल्यू अराउंड 2 करोड़ रुपीज़. अभी मैं आज से 2 करोड़ रुपीज़ अगर मैं FD भी कर देता हूँ, मुझे 6% से 12 लाख रुपया मिल जाएगा, विच इज़ 1 लाख रुपी a month, right? I'm paying is 50,000 रुपीज़, which is 6 lakhs rupees a year, which is 3%. अभी ये 6 लाख रुपीज़ जो है उसके अंदर जो मेरा बेचारा ओनर है वो इसके लिए तो इनकम है, तो उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, उसके ऊपर वो जो डेप्रीशिएशन है छोटा मोटा वो पे करेगा, सोसाइटी मेंटेनेंस पे करेगा. तो आपको लगता है कि 3% उसको मिलता है? 3 भी नहीं मिलता है. ही इज़ जस्ट गेटिंग अराउंड 2.2 2.3 के आजू बाजू डिपेंडिंग ऑन हिज फिनेंसेस, राइट. चलो एक है कि यार ये तो एक हो गया कि ठीक है 3% 4%. थोड़ा इमोशनल कॉल भी है कि मेरी वाइफ बोलते हैं भाई घर तो लेना चाहिए, इंडियन को घर चाहिए, पहला घर तो होना चाहिए. बट आई टेल यू इवन आई बाय अ हाउस, बट आई बाय अ हाउस क्योंकि मेरी भी ये एज है जहाँ पे मुझे रिस्क लेना है, मुझे EMI का बर्डन नहीं चाहिए, बिकॉज मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ कम हो जाएगी. बट आई बाय अ हाउस जब मुझे पता चलेगा या मेरी कैपेसिटी होगी, जो मेरा EMI होगा विल बी लेस देन 30%, देन आई बाय अ हाउस. आई एम नॉट सेइंग नॉट टू बाय अ हाउस खुद के लिए, बट या दैट्स हाउ इट इज. इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, बट बाय मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मत बाय करो, बट बाय इट विद इन योर लिमिट्स. अदरवाइज रेंट इज ऑलवेज बेटर. वो 3% में मिल जाता है और क्या चाहिए यार. यानी इमोशनल बाजू पे रखे प्योर फाइनेंस कर दे तो आई थिंक टिल्ट फेवर्स मोर टुवर्ड्स रेंट. बट अगेन एज यू सेड debatable. Yeah, it's an emotional correct. for Indians. It's No, a but I debatable can thing. understand. Pure finance wise, it's quite logical. Right. Emotion साथ में लाए तो it becomes debatable. अच्छा, tell me in your journey कोई ऐसा क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल डिसीजन या ओवरऑल एक फाइनेंशियल डिसीजन जिस विच यू कैन कॉल एज ए टर्निंग पॉइंट कि वो एक मास्टर स्ट्रोक हो गया, क्लाइंट खुश हो गया या whatever. So I'll give you an example. There was a client. Oh, he's still my client who met around 4 years back, if I'm not wrong. 3 या 4 years back हम लोग को ये क्लाइंट मिला था जो अराउंड 2 लाख रुपया महीने का नेट कमा रहा था. ओके, when we now this person was a sole earner of family. उसके एक वाइफ है, he has 2 beautiful kids. Okay, एंड उसके मॉम डैड है पर उनको पेंशन मिला था, इसके ऊपर डिपेंडेंट है. वाइफ इज़ डिपेंडेंट, किड्स आर डिपेंडेंट ऑन हिम. ओके, जब हम लोग मिले तो उसका मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट आई डोंट नो नहीं, बट रिटर्न बैक पॉलिसीज़ में था या FDs में था या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में उसने इन्वेस्टमेंट किया था. वो भी छोटा मोटा, उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं. उसका मैक्सिमम पैसा खर्च हो जाता था. ही इज़ एन एविड स्पेंडर. ओके, सो व्हेन वी मेट हिम, थोड़ा हम लोग ने बैठे, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग व्हाट वी डिड वाज कि सिंस ही इज़ द सोल अर्नर ऑफ द फैमिली, उसकी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वी डिड द कैलकुलेशन कि उसको टर्म लाइफ इंश्योरेंस कितना लेना है. ओके, तो कैलकुलेशन के हिसाब से वो 6 करोड़ का आ रहा था. तो इमीडिएटली वी टुक अ 6 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस टिल 65 ईयर्स ऑफ एज. मतलब 65 ईयर्स के एज तक उसको कुछ होता है तो 6 करोड़ गोज टू नॉमिनी. कुछ नहीं होता, इफ ही सर्वाइव्स नथिंग कम्स, इट एंड्स देयर. ओके, हम लोग ने टर्म इंश्योरेंस ले लिया बिकॉज दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग दैट वी डिड वॉज हम लोग ने 1 करोड़ का मेडिक्लेम ले लिया बिकॉज दिस 2 आर माई बेसिक पिलर्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस. ये 2 नहीं होगा गड़बड़ हो जाएगा. एंड थर्ड थिंग दैट वी डिड वॉज कि उसके पास हम लोग ने एक इमरजेंसी कॉर्पस के हम लोग किया जो डेवलप नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी उसके पास FD थी जो ब्रेकेबल FDs थी. तो उसके पास अराउंड 6 to 7 मंथ्स का कॉर्पस था जो इनफ, आई गेस वॉज इनफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि उसको इमरजेंसी के हिसाब से हम लोग काउंट कर सकते थे उसकी जो FDs थी वो. ओके, अगेन उसके पास बहुत सारे EMIs थे और क्रेडिट कार्ड EMI था और क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ा था. तो फॉर फर्स्ट 3 months और 4 months वी डिडंट डू एनी इन्वेस्टमेंट. पहले उसका सब क्रेडिट कार्ड के ड्यूज से वो सब कुछ क्लियर कर दिया. आफ्टर दैट वी अगेन सेट बैक, तो तब उसका माइंड क्लियर हुआ. ओके भाई कि अभी चलो टेंशन खत्म हो गया, अभी लेट्स इट. हम लोग देन अभी अगेन सेट. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी अंडरस्टूड कि क्या शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है. वी एक्सप्लेन, क्योंकि कभी उसने मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वी एक्सप्लेन हिम अबाउट द SIP कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, वॉलिटिलिटी एक्सप्लेन की, उसके रिस्क एपेटाइट उसका एक्सप्लेन किया. आफ्टर दैट यू नो ट्रस्ट मी, उसने 1 लाख का SIP स्टार्ट किया. ओके, ऑब्वियसली एज इज लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल्स. आफ्टर 3 years or 4 years, right now his SIP is 2.5 lakh rupees. The best thing that I like about him is, you know, जब हम लोग मिलते हैं, साल में एक बार मिलते हैं, हम लोग ने कभी रिव्यू की बात नहीं किया. वॉट वी स्पोक अबाउट इज़ कि आपके लाइफ में चेंजेस क्या हुए.
शॉर्ट टर्म में क्या चेंज हुआ, लॉन्ग टर्म में क्या गोल्स चेंज हुआ और मिड टर्म में क्या गोल्स चेंज हुआ, बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो हैज चेंज अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के उसके जो गोल्स है उसके हिसाब से, नहीं कि कोई मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज मार्केट विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. Till now, he's getting is around 16% CAGR return, but we are not even thinking about it because वो return ऊपर नीचे change होगा depending on the market. हाँ, but जब भी market fall होता है मुझे फ़ोन करता है, ऋषित डाल. अभी बेस्ट पार्ट है इसके पहले उसके पास EMI का बर्डन था. अभी थिंग्स हैव बिकम सो क्लियर बिकॉज ही नोज कब उसको इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है. द थिंग्स हैव बिकम सो क्लियर. क्या सैलरी तो बढ़ी तो उसके SIP तो उसे इंक्रीज़ कर दी टू 2.5 lakhs, बट आज वो एक्सपेंस भी कर पा रहा है, इन्वेस्ट भी कर पा रहा है, सेविंग भी कर पा रहा है और मज़े भी कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसके पास पूरी क्लैरिटी है. सो हैविंग अ क्लियर गोल, हैविंग अ क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस. सो देन देयर इज़ नो फियर कि आपको पूरा रोड मैप क्लियर है. अभी हम जो स्टार्टअप को में फाउंडर्स को कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए जाते या वर्चुअल CFO सर्विसेज के लिए जब हायर करते, धीरे धीरे हमारे भी रिश्ते फाउंडर के साथ ऐसे होते कि जहाँ वो पर्सनल फाइनेंस भी डिस्कस करता है या उन्हें चाहिए होता है कि चलो भाई होलसम सॉल्यूशन आप दे दो. तो वहाँ पे हाउ गाइज लाइक यू कैन मे बी व्हाट यू कैन टेल दैट टर्म एज कोलैबोरेशन या कि हमारी मदद करते हुए उनकी मदद करते हुए हम एक बीच में जरिया बन जाए, ऐसा कुछ. Sure. So I feel CA and as in mutual fund distributors or advisors are the best collaboration that you can ever have. I'll tell you the reason. कि मैं जेन्युइनली बोलता हूँ कि जब कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, थ्रू रेफरेंस से नया क्लाइंट आता है, पहले शायद उनका ट्रस्ट डेवलप नहीं होता. तो हम लोग जब प्लानिंग करते हैं, जब उसका फाइनेंसेस देखते हैं या उसके कैश फ्लोज देखते हैं, शायद तो वो ओपन अप नहीं होता. तो प्लानिंग तो होता है पर प्रॉब्ली शायद उतना अच्छा प्लानिंग नहीं होता. बट से इफ़ आई एम कोलिब्रेटिंग विथ यू, आप मुझे कोई क्लाइंट भेजते हो, आपको तो ऑलरेडी आइडिया होगा उसके क्या लाइबिलिटीज़ है, उसके क्या असेट्स है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है, उसके क्या इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, एक्सपेंस पैटर्न क्या आपको पूरा पता होगा. सो इफ़ दैट कैन बी शेयर टू पीपल लाइक अस, देन हम लोग का प्लानिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस. सेकेंड थिंग से अगर मैं मेरे एंगल से बात करता हूँ कि मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मुझे भी कई बार टैक्सेशन की, आई एम नॉट CA राइट, मुझे भी टैक्सेशन पे एडवाइस तो चाहिए होगी राइट. सो होता क्या कि मैं आपको सीधा पूछूंगा इसका टैक्सेशन क्या आएगा, यू टेल मी इमीडिएटली. तो क्लाइंट के लिए इज़ अ वन स्टॉप शॉप, एक सिंगल अम्ब्रेला में सब कुछ उसको मिल जाता है, विच इज़ अ बिग बेनिफिट. एंड ऑब्वियसली मेरे जितने भी क्लाइंट्स होंगे इन्वेस्ट करें तो उसको टैक्स तो फाइल करना ही पड़ेगा. So I feel it's a win-win situation for both of the field that we are into. And जितना collaboration होगा शायद आप भी भाग पाओगे, हम लोग भी भाग पाएंगे. Main important is we'll be able to do something good for the society. Correct. Say supposingly आपको समझो आज जो आपका भी एक स्केल है अभी जहाँ नंबर ऑफ क्लाइंट्स है, बट इफ़ यू गेट डबल द मनी या डबल द रिसोर्सेस, तो what immediately comes to mind कि आप किस तरह then you will shape up your. Okay. so मेरा से प्रैक्टिस डबल हो गया, मैन पावर डबल हो गया, तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग ऑब्वियसली मुझे क्लाइंट्स ज़्यादा मिलेंगे विच इज़ गुड. तो मैं और ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाऊँगा, और ज़्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस कर पाऊँगा, और मैं और ज़्यादा गोल्स अचीव कर पाऊँगा, विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर मी. सेकेंड थिंग इज़ मैं और इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम कर पाऊँगा फॉर माई क्लाइंट्स, फॉर द कॉर्पोरेट. आई कैन गो टू मच बिगर कॉर्पोरेट, मच ज़्यादा कॉर्पोरेट को जा सकता हूँ जहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट कर सकता हूँ. प्लस obviously I like to be more on social media and with a podcast like you, जहाँ पे ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे there are certain areas where मैं अभी पहुँच नहीं पा रहा हूँ. So probably social media मुझे वो areas है, वो locations पे पहुँचा सकता है जो शायद मैं खुद नहीं पहुँच पाऊँगा awareness point of view से. Second thing, that's one part. Second thing I would like to say कि I want to give something because this field has given me a lot and I'm really grateful for that, and I want to give something back to the society, to this field. तो जो नए अपकमिंग एडवाइजर्स है, आई वुड लाइक टू मेंटर देम, आई वांट टू गिव देम आइडिया कि किस तरह से बढ़ना होता है, क्या करना होता है. यू नो विशाल, राइट नाउ देयर आर ओनली 3 लाख ARN होल्डर्स इन इंडिया. उसमें भी यानी डिमांड सप्लाई बड़ा. हाँ, उसमें भी 3 लाख में तो सब एक्टिव होंगे नहीं, प्रॉब्ली इफ आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट गेसिंग अगर 70% भी एक्टिव है. ओके, राइट नाउ द पॉपुलेशन इज़ 140, 150 or 160 crores. जस्ट इमेजिन द स्किल दैट इज़ देयर. सो मैं पूरा पाई खा नहीं पाऊँगा, but I want India to prosper, I want people to prosper. So I want to educate the new advisor, I want to guide them the new advisor, and that's how I guess if I can do and if I can achieve, मुझे एक बंदे का अगर फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाता है, then it's nothing like it. So tell me, या एक पर्सन जो अपना फर्स्ट स्टेप आपके जैसा होने के लिए ट्राई कर रहा है, या एक पर्सन जो फर्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टमेंट जर्नी कर रहा है, वो ले नहीं पा रहा है या सोच
रहा है, तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? सो विशाल, आई विल से इन दिस वे कि जब कोई बंदा स्टार्ट करता है तो एक तो कंपाउंडिंग जो मैं बता दी ऑलरेडी कर दो. सेकेंड जो फियर है कि प्रोक्रास्टिनेट मत करो. You don't need 10 lakh rupees to start it off. You can even start small, but keep it big, be consistent and be disciplined. Okay? Third important factor I'll say is कि आप अपने फील्ड में आप अपना अपस्केल करो rather than looking at the reels. हाँ, रील्स देखो, सोशल मीडिया देखो, बट टू अ सर्टेन एक्सपेक्ट. आजकल देखा गया कि घंटों घंटों सोशल मीडिया. अंडरस्टैंड वन थिंग, सोशल मीडिया आप देखते हो, probably the people who are doing that social media is benefiting more rather than you. So it's important that you upskill yourself. आपकी फील्ड में आप अपना बुक्स पढ़ो या आप अपने आप को अपस्केल करो, बिकॉज दैट्स वेयर यू आर गोइंग टू मेक मनी. इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप जब तक अपस्केल नहीं करोगे, यू डोंट बी द बेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, सेविंग क्या होगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट आप खुद अपने आप को अपस्केल करो. वंस दैट इज डन, दैन 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. वन वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट इज दैट टर्म लाइफ होना चाहिए, मेडिक्लेम होना चाहिए, इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए, विच इज अ नॉन रिस्क एंड ईजिली लिक्विडेटेड. ये एक बार हो जाता है, देन फॉलो दिस फार्मूला विच इज़ 50-20-20-10. ओके, विच मीन्स कि आपको मंथली जो सैलरी आता है, अगेन दिस पर्सनल फाइनेंस, ये नंबर्स चेंज हो गए, बट आई एम जस्ट गिविंग अ बॉल पार्क फिगर. ओके, आपकी जो सैलरी आती है वो सैलरी में से 50% शुड गो टू योर बेसिक नीड्स, राशन पानी कपड़ा. ओके, 20% शुड गो टू योर लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस, होटल में गए, कपड़ा खरीदा, 20% वहाँ पे एक्सपेंस होना चाहिए. 20% शुड बी योर इन्वेस्टमेंट्स. ओके, एंड 10% शुड गो बैक टू सोसाइटी, आइदर थ्रू चैरिटी, डोनेशन. अगर आपको वो नहीं करना है, तो योर नंबर शुड गो टू 10% शुड एड अप टू योर इन्वेस्टमेंट्स. ओके, अगेन जब आप इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता हूँ, यू शुड हैव ए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स. और वो जो गोल्स तो बहुत सारे होंगे, पर उसको स्मार्ट SMART स्ट्रेटेजी है, उसमें से फिल्टर होके आना चाहिए, एंड दैट आर एक्चुअली योर रियल गोल्स. करेक्ट, वेरी गुड. सो जैसे 50-20-20-10 बोला, वैसे कुछ थंब रूल्स ऑफ फाइनेंस कुछ और होंगे जो आप क्विकली बताना चाहोगे? हालांकि फाइनली इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो हमने बोला ही है कि यू नीड अ एक्सपर्ट, बट एटलीस्ट कोई आपको फुल ना बना जाए, या कुछ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ऐसा कोई थंब रूल ऑफ इन्वेस्टिंग? सो आई से 1-2 थंब रूल हैं. आई से 4 to 5 थंब रूल्स आर देयर. वन इज अंडरस्टैंड रूल ऑफ 72. एनीथिंग दैट यू डिवाइड बाई 72, मतलब जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, डिवाइड बाई 72 इज 72 डिवाइड बाई दैट इंटरेस्ट इज अ नंबर ऑफ ईयर्स इट विल टेक टू डबल योर मनी. तो हम लोग बोलते हैं FD में 5 साल में डबल होगा, नहीं. FD 6%, 72 डिवाइड बाई 6, इट विल टेक 12 ईयर्स, राइट? 12 ईयर्स टू डबल योर मनी. या 12% का रिटर्न आया तो इट विल टेक 6 ईयर्स टू डबल योर मनी. हाँ, सो वो एक अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग आई विल से, पर्सनल फाइनेंस जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है. कीप योर पर्सनल फाइनेंस एज सिंपल एज पॉसिबल, बिकॉज द मोर यू कॉम्प्लिकेट, द मोर चांसेस ऑफ यू गेटिंग रॉन्ग. थर्ड थिंग विच आई विल से इज, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स रादर देन नॉट ट्राइंग इट आउट. पर्सनल फाइनेंस में, ट्रस्ट में, ये डायलॉग मेरा रिकॉर्ड कर दो, पर्सनल फाइनेंस में सब लोग मिस्टेक करते हैं, जो सबसे कम मिस्टेक करेगा वो जीतेगा. सो डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स. हाँ, मिस्टेक होते रेक्टिफाई कर दे, रिपीटेडली मत करना, बट इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, आप जीतोगे. ओके, थर्ड थिंग, पर्सनल फाइनेंस, अगेन इट्स पर्सनल, डोंट कंपेयर विद अदर पर्सन. आपका और उसका थॉट प्रोसेस अलग है, सैलरी अलग है, गोल्स अलग है, रिस्क एपेटाइट अलग है, तो आपका पर्सनल कभी भी डिस्क्लोज, आई विल से मत डिस्क्लोज करो, बात मत करो पर्सनल फाइनेंस के दूसरे बंदे या आपके फ्रेंड या रिलेटिव से. एंड द फोर्थ थिंग, हम लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस का जो पैसा है, प्रीमियम है, वो वेस्ट ऑफ मनी है. आई विल से इट इज़ नॉट वेस्ट ऑफ मनी, इट इज़ लाइक अ पर्सनल बॉडी गार्ड हु इज सेफ गार्डिंग योर फ्यूचर गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स. So tell me, Rishit, if you had a mentor to begin with in your journey, would anything have been different where you are standing today? Sure. So since my dad is already into this field, मुझे mentor तो already थे. Plus I had people who always helped me and supported me. But given a choice, अगर मुझे choice मिलता, तो I would like to come into this field much earlier than what I am right now today. because ज़्यादा clients मिलते, ज़्यादा financial planning कर पाता, ज़्यादा awareness, ज़्यादा goals में कर पाता. But again, I don't have any regrets to this. बिकॉज मेरे प्रीवियस असाइनमेंट में बहुत सारा सीखने को मिला, जो आज मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ मेरे एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में. प्लस हम लोग की जो ऐसी फील्ड है, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एवरी क्लाइंट इज़ अ न्यू क्लाइंट, एवरी क्लाइंट इज़ अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस. सो मेरे लिए एवरी डे एक नया केस स्टडी आ रहा है. सो इट्स अ वेरी इवॉल्विंग प्रोसेस. अब मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ लर्न कर रहा हूँ, एंड आई होप दैट आई कीप ऑन लर्निंग इन द फ्यूचर ऑल्सो. एज फार एज पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न, जैसे मैंने बोला कि मैंने खुद इन्वेस्टमेंट्स पहले किया था, I'll say tip based इन्वेस्टमेंट्स या स्टॉक्स लिया था, या अनरिसर्च स्टॉक लिया था.
आई जस्ट विश्ड, आई होप दैट वो टाइम पे अगर मैंने म्यूचुअल फंड SIP कर दिया, तो म्यूचुअल फंड में डाल दिया तो शायद कंपाउंडिंग ज़्यादा होता, शायद ज़्यादा पैसा भी बन जाता. बट एज यू सेड मिस्टेक सभी करते, जितने कम करो अच्छा है. ट्रू. एंड लास्ट कोई मैसेज के ऑडियंस के लिए या इवन नॉन फाइनेंस की. सो द मैसेज इज सिंपल दैट जस्ट ट्राई इट आउट. इनिशियल आप जब स्टार्टअप करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट वो एक रिस्क तो लेना पड़ेगा. लास्ट में लास्ट क्या होगा, नहीं होगा ना, ठीक है, आपका बैकअप तो आपके पास है ही, आप यू आर डूइंग अ जॉब, बट स्टार्ट इट आउट, ट्राई इट आउट. एंड इफ़ यू आर पॉजिटिव, इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, लुक अंडरस्टैंड वन थिंग, आप क्लाइंट के पास जाते हो तो ऑलवेज सोचो कि आपको बेनिफिट का, ऑलवेज सोचो मैं क्लाइंट का कैसे भला कर सकता हूँ. आई ऑलवेज थिंक इफ आई एम गोइंग टू दिस क्लाइंट, वॉट इज़ द थिंग दैट ही डजेंट हैव इट. तो मैं जब जाता हूँ मैं कुछ ना कुछ टेबल पे लेके जाता हूँ, एंड दैट इज मुझे एक सक्सेस मिलता है. अनदर थिंग आई सेड कि इट्स ओके अगर लास्ट में लास्ट क्या होगा, ना बोलेगा, वैसे भी ना है, तो इट्स ओके, एटलीस्ट ट्राई इट आउट, राइट. अगर आपकी इच्छा है, जॉब भी कोई बुरा नहीं, बट इच्छा है और नहीं ले पा रहे हो तो ऋषित यही कह रहे हैं कि एटलीस्ट ट्राई इट आउट, देन you can always go back to your job. Right. Thanks again. Thank you so much, Vishal. Signing off, Vishal Mehta. I hope our listeners learned a lot from Mr. Rishit Shah, and seeing you soon with another podcast episode whereby we keep on learning from startup founders. Thank you.